Father, we want to thank you, Lord, for this morning. हे पिता, आज के इस सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Lord, we are coming before the throne of grace this morning. प्रभु, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। You are so good in our lives, Lord. तू हमारी जिंदगी में कितना भला है। Though we failed so many times, कितने बार प्रभु हम गलतियां करते but हैं, still you are so faithful in our lives. लेकिन प्रभु तू कितना वफादार है। Thank you for all the blessings in our lives, Lord. हमारी जिंदगी में जो आशीष तूने दिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु हम आभारी हैं। Lord, as we are sitting in your presence, Lord, प्रभु, जैसे हम तेरी उपस्थिति में बैठे we हैं, want you to speak to our hearts. हम चाहते हैं प्रभु कि तू हमसे बात करे। You know what we are in need of. प्रभु, तू जानता है आज हमें कौन सी चीज की आवश्यकता है। Lord, we are sitting in your presence with an open heart and with an open mind. प्रभु, एक खुले मन से, खुले दिल से प्रभु हम यहाँ बैठे हैं तेरी उपस्थिति में। Lord, we pray that you speak to all of us, Lord. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तू हम सब से बात कर। Encourage us through your word. तेरे वचन के द्वारा प्रभु तू हमें प्रोत्साहित कर। Correct us through your word, तेरे वचन के द्वारा प्रभु तू हमें सुधार, so that we will walk in your ways, Lord. ताकि हम तेरे मार्ग में चल पाए। Lord, we pray for the Holy Spirit to take complete control over this place. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरा पवित्र आत्मा इस जगह का पूरा कब्जा ले ले। There should not be any kind of distractions, Lord. और प्रभु किसी भी तरीके के प्रभु कोई भी प्रभु हमारा ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके। Lord, I pray that you lead us and guide us through your Spirit. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा के द्वारा तू हमें चला और हमारी अगुवाई कर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So I bring greetings to you all in Jesus' name. यीशु के नाम में आप सबको प्यार भरा अभिवादन। Okay, once again, it's our privilege to come into the house of God and spending time to worship Him and adore His name. और ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु के भवन आए हैं, हमने उसकी आराधना की है, उसके नाम का हमने सजदा किया है। Okay, how many of you are happy this morning? आप में से कितने जन खुश हैं आज के इस सुबह में? Yeah, you all look very serious this morning. आज सुबह के वक्त आप सब बहुत गंभीर दिख रहे हैं। Okay, so let's all have smiling face and turn to each other and say, "Be happy in the Lord always." एक मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर हम बनाए और ना एक दूसरे से कहे, प्रभु में हमेशा आनंदी रहो। Amen. Okay, turn to your neighbor and say, "Okay, be happy in the Lord always." आपके पड़ोस आगे पीछे बैठे हुए लोगों से कहना, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। Amen. Always be happy in the Lord. हमेशा प्रभु में खुश रहे। Amen. 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 So this is the third week of this month. और इस महीने का ये तीसरा हफ्ता है। Okay, when we started this 2026, जब 2026 की हमने जब शुरुआत so की, you all remember that we started to focus on 4 areas of our lives. और आप सबको याद होगा कि हमने हमारे जीवन के 4 भागों पर जोर देने का प्रयास किया है। And we prayed and we prepared a memory verse accordingly, and we started to pray that God would help us to overcome these 4 areas and be successful in these 4 areas. और उसी के अनुसार पास्टर ने पूरे वर्ष के लिए 52 वर्सेस हमें दिए हैं जो इसी के आधार पर है, और वो हम कंठस्थ कर रहे हैं ताकि हम इन्हीं बातों पर हमारे जीवन में अधिक महत्व दे, ध्यान लगाएं। Okay, 4 areas. 4 भाग है। Number 1 about healing. पहला है हमारी चंगाई, And number 2 financial blessings. दूसरा है हमारे पैसों में बरकत, Number 3 deliverance. तीसरी है हमारी छुटकारे की बात, Number 4 family. चौथा है हमारा पारिवारिक So जीवन। every third week of month, हर महीने के तीसरे हफ्ते में we specially will have a teaching on that particular topic and we'll have a special prayer. उस हफ्ते में विशेष शिक्षा दी जाती है उस विषय के आधार पर। Okay, in the month of January we meditated and we prayed over the health and healing. और जनवरी महीने में हमने चंगाई के विषय में, अच्छी स्वास्थ्य के लिए हमने शिक्षा प्राप्त की और वैसी हमने प्रार्थना भी की। And February 3rd week we studied about financial blessings and we had a special prayer for that. और फरवरी महीने में हमने पैसों की आशीष के विषय में सीखा और उसके अनुसार हमने प्रार्थना भी की। And third month when we had a convention and we heard about family. और तीसरे महीने में हमारा कन्वेंशन रहा था और हमने वहां पर पारिवारिक जीवन के विषय में सीखा था। And today we are going to study about deliverance. और आज हम
छुटकारे के विषय में सीखने वाले So we हैं। are going to study about deliverance. आज हम छुटकारे के विषय में सीखेंगे। Okay, turn with me to Epistle to Hebrews chapter 2 and verses 14 and 15. आइए इस वक्त हम इब्रानी अध्याय 2 को खोलेंगे, वचन 14 और 16। Yeah, 14 and 15. 14 और 15। For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, verse 15, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। So when you read the book, when you take the book of Hebrews, जब हम इब्रानियों की किताब देखते हैं, though the author is unknown, भले ही इसका लेखक कौन है हम अनजान है इसके विषय but में, still many Bible scholars, they agree that Paul has written this letter. लेकिन फिर भी बाइबल के जो तज्ञ ज्ञानी है वो कहते हैं कि इब्रानियों का लेखक निश्चित रूप से पौलुस ही है। And main theme of this book is to introduce Christ as a fulfiller of the law, and he is the savior of this world. और इस इब्रानी की पत्री में हमें मसीह को पौलुस इस समान प्रस्तुत करता है कि उसने सारे नियमों का पालन किया है, पूरा किया है, और उसी के द्वारा हमें अनुग्रह बातें मिलती है। And when you read chapter 1 and chapter 2, जब हम इब्रानी 1 और वचन 2 पढ़ते the हैं, author has been explaining about Christ, and he says about the purpose of Christ. और इब्रानी इस वचन में पौलुस बताता है मसीह के आने का मकसद क्या रहा है। And the Paul says, maybe the author of the Hebrews says, Jesus became flesh and blood so that he might destroy all the works of the devil and deliver us from the fear of death who are in the lifetime bondage. और यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु मसीह लहू और मांस का रूप धारण करके हमारे बीच आए, ताकि वो शैतान के सारे कामों को उद्ध्वस्त कर पाए। The main purpose of Jesus to this world is to deliver us from all bondages. यीशु मसीह का सबसे महत्वपूर्ण मकसद ये है कि हमें हर एक बंधनों से छुड़ाए। When you read Luke chapter 4 and verse 18 and 19, यदि हम लूका 4 वचन 18 और 19 देखें, and here there Jesus says, Father sent me to proclaim the freedom and to set the oppressed free. और यहाँ पर हम प्रभु का वचन देखते हैं कि पिता ने क्यों करके मसीह को भेजा, ताकि जो बंधन में है उन लोगों को यीशु मसीह छुड़ाए। Okay, that is the purpose of Jesus coming to this world. और यही है यीशु मसीह का इस भूतल पर आने का मकसद। That is known as Nazareth Manifesto. और इसी को नासरत की घोषणा पत्र भी कहते हैं। But look at the Christian lives today. लेकिन आज हमारे मसीह लोगों की जीवन की ओर देखिए। As I have been traveling throughout the different places, I know the Christian people are the people more or into the bondage and they are not delivered. जैसे प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, पूरे भारत में मैं घूमता हूँ प्रभु के काम के लिए, तब मैंने देखा है ज्यादा करके जो लोग बंधवाई में है वो है मसीह लोग। And we believe that Jesus Christ is a healer, but still so many of us are still in sickness. हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह चंगाई करने वाला परमेश्वर है, विश्वास करते हुए भी हम में से बहुत सारे लोग बीमारी की अवस्था में So we हैं। all know and we all believe that our God is a provider, but still so many people, so many Christians are still in poverty. हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों की पूर्ति करता है, ये जानते हुए भी हम में से बहुत सारे लोग गरीबी की अवस्था में हैं। We believe that our Jesus Christ is the person who gives us a peace, but still there are so many people don't have peace in their lives. हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही शांति दाता है, लेकिन हम में से कितने जन हैं जिनके जीवन में शांति ही नहीं है। And we know that Jesus came to deliver us, but still so many people, so many Christians are still in bondage. हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमें बंधनों से छुड़ाता है, लेकिन फिर भी हम में से कितने जन बंधनों में आज भी है। While we were in this world, जब हम इस दुनिया में हैं, and we were in bondage, जब हम इस दुनिया में पहले थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तब भी हम बंधन में थे। before accepting Christ, मसीह को अपनाने से we पहले had a lot of problems. हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्या Even थी, after accepting Christ, लेकिन आज मसीह को अपनाने के बाद still we have the भी problem. हमारी जिंदगी में वही मुश्किलें हैं। Sometimes maybe your name might be changed. शायद कई बार ऐसा होता, आप
आपने आपका नाम बदला होगा, maybe the family might have been changed, शायद आपका परिवार बदल गया होगा, but how you were before, the same way or even after becoming a Christian. लेकिन जैसे आप पहले थे वैसी ही बातें आज भी आपकी जिंदगी में है। भले ही आज आपने मसीह को अपनाया है, Still many Christians are still in bondage, still they are suffering. आज भी बहुत सारे मसीह लोग बंधुआई में हैं, बहुत सारी पीड़ा और यातना से गुजरते Now हैं। some say, just Jesus told us to carry the cross every day. That does not mean that you have to be in bondage. कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह ने स्वयं कहा है अपना क्रूस लेके चल, तो ये मेरे जिंदगी का क्रूस है। The main purpose of Christ coming to earth was to deliver us from all kind of bondages. लेकिन हमने जानना है यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का एक महत्वपूर्ण मकसद ये रहा कि हम बंधुआई में से बाहर निकले। Now God did not deliver the people of Israelites so that they would be still in bondage after they enter into the promised land. प्रभु ने इज़राइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया इसलिए ताकि वो रिहाई की जिंदगी जिए, इसलिए नहीं कि रिहा होने के बाद भी कनान देश में बंधुआई की जिंदगी जिए। Jesus has not saved you and me so that still we would be in bondage even after becoming a Christians. आज प्रभु ने हमें छुड़ाया है इसलिए नहीं ताकि हम उसे अपनाने के बाद दोबारा उसी बंधुआई में रहे। Jesus saved us and called us so that we will have a victorious life. प्रभु ने हमें बचाया है, प्रभु ने हमें छुड़ाया है इसलिए ताकि हम एक जयवंत जीवन जिए। That is why Jesus paid the price on the cross of Calvary. इसीलिए तो यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर उस कदम को उस सारे दाम को चुकाया है। Many believers of Christ even today they are still in bondage of sin and poverty and curse and different kind of things. आज भी बहुत सारे विश्वासी जन हैं, आज भी बंधन में है, गरीबी के बंधन में है, बाकी के शापों के बंधन में है। We are still under the bondage of witchcraft. आज भी बहुत सारे लोग जादू टोना के बंधन के नीचे है। After becoming a Christian, still we believe that somebody has done something against me. That is why I am going through such a struggle in my life. आज भी मसीह में आने के बावजूद भी आप विश्वास करते हो किसी ने तो मुझ पर जादू टोना किया है, इसीलिए इतने सारे मैं मुश्किलों से गुजर रहा If हूँ। that is the purpose of God, Jesus could have not come to this world. अगर यीशु का आने का मकसद नहीं होता ये तो शायद वो आते ही नहीं हमारे लिए। Now, many of would say that if one problem gets settled, the another problem arises. हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं एक समस्या से कुछ मैं बाहर नहीं निकलता तो दूसरी समस्या आ जाती है। Striving hard and putting all my efforts, but there is no hope of growth. मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है। Jesus died for you and me not to live a defeated life, but to live a victorious life. यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए मारे गए और जी उठे, इसलिए नहीं ताकि हम एक निराशा की जिंदगी जिए जो पूरी तरह से हारी हुई अवस्था में है, लेकिन इसलिए ताकि हम एक विजयशाली जीवन जिए। Jesus died for us not to live a life of poverty, but also Jesus died for us to have a prospered life. यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए नहीं मारे गए ताकि हम एक गरीबी की जिंदगी बिताए, इसलिए ताकि हमारे जिंदगी में भी धन संपत्ति रहे। Jesus died for us not to have a painful life but peaceful life. यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए इसलिए नहीं कि हमारे जिंदगी में केवल दुख और दर्द रहे, लेकिन इसलिए ताकि हमारे जिंदगी में सुकून रहे, तसल्ली रहे। Jesus paid the full price on the cross of Calvary so that we will be completely delivered from the bondage. यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर पूरा दाम चुकाया है, इसलिए चुकाया है ताकि आप पूरी तरह से रिहाई की जिंदगी जी पाओ। That is what the author of Hebrew reminds us, that Jesus died so that we will have the deliverance from the bondage. यही बात तो इब्रानियों का लेखक हमें कहता है, यीशु मसीह हमारे खातिर मारे गए ताकि हम छुटकारा पाए। Why we are still in bondage? हम क्यों करके आज भी बंधुआई में हैं? After becoming Christians, मसीह होने के बावजूद when you भी think about your life, nothing is changed. अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ खास बदला नहीं है। You are in the same family, हम उसी परिवार में रहते same हैं, job, वही नौकरी कर रहे same हैं, problem. वही समस्याएं हैं। Only you are coming to Christ. केवल एक ही बात है, आप मसीह के पास आ Only रहे you are हो, coming to church. आप केवल कलीसिया आ रहे हो, Only you are reading Bible. आप अभी बाइबल पढ़ रहे हो। Do you think for this only Jesus died on the cross? क्या आपको लगता है केवल इन्हीं कारणों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए? Do you think that Jesus died for you so that still you will live in bondage? क्या आपको ऐसा लगता है कि आज भी आप बंधुआई में जिए इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए? Change your belief system and come to know that
it is not the purpose of Jesus who died on the cross of Calvary so that we live a life of bondage. Jesus died so that we'll have the life of victory. हमारे सोचने का जो तरीका है उसे हमने बदलना है। यीशु मसीह हमारे खातिर इसलिए मारे गए ताकि हम बंधुआई में ना रहे, तब फिर हमने भी किसी भी बंधन में नहीं रहना है। It is my prayer that before we finish the series of deliverance, I just want you to be delivered in all the areas of your life and start to live a victorious life. ये मेरी प्रार्थना है कि हम इस छुटकारे की शिक्षा को पूरा करने से पहले प्रभु हमारे सबके जिंदगी में हमें छुटकारा दे। As a believers, हम जब विश्वासी as हैं, the followers of Christ, हम जब मसीह के अनुयायी we हैं, must know certain things about deliverance. हमने छुटकारे के विषय में कुछ बातों को जानना We है। must change our belief system. हमने हमारे विचार करने की जो क्षमता है उसे बदलना You है। should never believe that, I came to Christ, I'm taking the cross of Christ, so that is why I have to be in bondage. हमने कभी ऐसा नहीं सोचना मैं मसीह में आया हूँ, मैंने क्रूस उठा के रहना है, इसीलिए आज भी अगर मैं बंधुआई में रहता हूँ तो बात चलती है। It is not the plan of God. परमेश्वर की ये इच्छा या It मर्जी is नहीं है not the आपके लिए, purpose of Christ who died on the cross. ना ही ये मसीह का मकसद रहा है जो आपके लिए मारा गया। You must know certain thing that Jesus died for me in this world so that I can have a victorious life. आपको इस बात का एहसास होना है कि यीशु मसीह मेरे खातिर मारे गए ताकि मैं एक विजयशाली जीवन जी सकूं। Today I just want to tell you three important things आज मैं आपको तीन महत्वपूर्ण बातें बताना which you चाहता must हूँ, know about deliverance. जो बातें हमें छुटकारे के विषय में जाननी We जरूरी must know है। certain things about deliverance then so that our life will change, our thought process will change. हमने छुटकारे के विषय में जानना है ताकि हमारी जिंदगी बदले और हमारे विचार करने का तरीका भी बदल The जाए। number one. सबसे पहली बात, First thing we all must understand, पहली बात हम सब ने समझना है Jesus alone can set me free. कि केवल यीशु मसीह ही मुझे छुड़ा सकते हैं। Okay, turn with me to John chapter 8 and verse 36. यूना 8:36 को हम खोलेंगे। When you read John chapter 8 and verse 36, जब हम यूना 8:36 पढ़ते if हैं, the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. प्रभु का वचन हमसे कहता है कि इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। And John says, यहाँ पर यूना कहता है, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो And जाओगे। Jesus was saying this word to the Jewish people. और यीशु मसीह ये शब्द किसे कह रहे थे? यहूदी लोगों के They लिए। believed Jesus. और ये यहूदी लोग यीशु पर विश्वास करते थे। And to the Jewish people and community, and he says, if the Son makes you to get free, you shall be free indeed. और यीशु मसीह उन यहूदियों से कहते हैं यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो निश्चित रूप से तुम स्वतंत्र हो Now जाओगे। when you read the verse 36, जब हम वचन 36 पढ़ते the हैं, verse starts with the word if. यहाँ पर इस वचन की शुरुआत कैसी होती है? यदि, इसीलिए, यदि If Son makes you to free, and you shall be free. यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। Then the question is, फिर एक सवाल आता है, does really Jesus want me to get free? क्या ये वाकई में यीशु मसीह चाहता है कि मैं आजाद हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं? Because Jesus himself said, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा if है the Son shall make you free, you shall be free. यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो When जाओगे। you turn to different scriptures in the Bible, जब हम बाइबल में और वचनों को देखते when you हैं, turn to Matthew chapter 8 and verse 2 and 3, मत्ती 8, 2 और 3 जब हम पढ़ते and हैं, Mark chapter 1 verses 40 to 42, मरकुस 1 वचन 41 और 42, Luke chapter 5 verses 12 to 13, लूका 5, 12 से 13, in these three scriptures you read, a leper came to Jesus and said, if you will, you can heal me. यहाँ पर हम देखते हैं एक जो पैरों से जो व्यक्ति पंगु था, वो व्यक्ति लेपर जो कुष्ठ रोगी था, वो यीशु मसीह के पास जाता है और कहता है यदि आप चाहो तो मुझे आप चंगा कर सकते हो। What was the answer of Jesus? तब यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से क्या कहा? Jesus said, I will be thou clean. यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा। Because this leper knew from the Old Testament background,
क्योंकि ये कोढ़ी जानता था पुराने नियम के अनुसार leprosy was considered as a curse. जो भी कुष्ठ रोग जिस किसी व्यक्ति को होता था वे समझते थे कि उसे परमेश्वर से शाप मिला है। That is why when he had come to Jesus and he said, if you will and you can make me clean. इसीलिए वो यीशु मसीह से कहता है यदि तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर। We know about the life of Christ. हम मसीह के जीवन के विषय में जानते हैं We read about the ministry of Jesus Christ. और हम यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में भी पढ़ते When हैं। Jesus was doing ministry, जब यीशु मसीह सेवा कर रहे थे many people followed Christ. बहुत सारे लोग यीशु के पीछे हो लिए The majority of people followed Christ for the healing and deliverance. और ज्यादा करके जो लोग यीशु के साथ चले वे चंगाई के लिए चले, छुटकारे के लिए चले। Jesus never said, I'm sorry, I cannot heal you. लेकिन यीशु ने कभी भी उन लोगों से ऐसा नहीं करना कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। Jesus never said, come tomorrow, I should pray and see if God can heal you or not. यीशु मसीह ने कभी इन लोगों से नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कल तुम आना और फिर मैं जानूंगा कि प्रभु तुम्हें चंगा करना चाहता है या नहीं। Jesus never said, come on such and such day so that I will pray and ask God if it is His will or not. कभी प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम है ना फलाने दिन आना तब मैं परमेश्वर से पूछूंगा कि उसकी मर्जी है या नहीं कि मैं तुम्हें चंगा करूं। Bible says very clearly, Jesus healed all. बाइबल साफ तरीके से कहता है यीशु मसीह ने सब उन रोगियों को चंगा कर दिया। Not only in the matter of healing, केवल ये बात चंगाई तक ही सीमित नहीं है। even the people came with a demon possession. यहाँ तक कि जो लोग शैतान से जकड़े हुए थे वैसी अवस्था में जब वे यीशु के पास आए, But still Jesus did not say that, sorry, I cannot do that. यीशु मसीह ने उनसे कभी ऐसा नहीं कहा माफ करना मैं आपको नहीं छुड़ा सकता। Whoever came to Jesus, जो भी कोई व्यक्ति यीशु के पास गया Jesus touched them and healed them and delivered them. यीशु मसीह ने उन लोगों को छुआ और उन्हें चंगा किया, छुटकारा दिया। What we know from the scripture, वचनों से हम क्या जान सकते हैं? God's desire is for all of us to live in healing and deliverance. ये प्रभु की मर्जी है, ये उसकी इच्छा है कि हम सब एक छुटकारे की जिंदगी बिताए। You must make up your mind and know that Jesus has come to this world to set me free. आप सब ने ये इस बात को जानना है यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि मैं आजाद हो जाऊं। When you read Galatians chapter 5 and verse 1, जब हम गलाती 5:1 पढ़ते हैं, Paul says, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है अर्थात इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुओं में फिर से ना जुतो। Paul says very clearly, पौलुस बहुत साफ तरीके से कहता है Jesus has made us free. यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। Jesus has made us free. यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। When you look at the life of Christians today, आज यदि आप मसीह लोगों की जिंदगी को we देखोगे, are fighting the battle and we are living in bondages. अगर देखा जाए तो असलियत में हर दिन हम किसी ना किसी युद्ध से झुलझ रहे हैं। We are taking a lot of decisions that I will do this, I will do that tomorrow. हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं कि कल मैं ये करूंगा वो करूंगा, But when you fail, लेकिन जब वो निर्णय करने में हम चूक जाते you हैं, develop inferiority complex in your mind and say that I cannot live a victorious life. फिर हमारे मन में वो हीन भावना आती है मैं नहीं क्या मसीह में विजयशाली जिंदगी नहीं जी सकता। Feeling guilty and shame. और फिर हमारे मन में हमेशा क्या रहता है, केवल लज्जा रहती है, शर्मिंदगी होती है। Some of you are struggling with your past life. आज आप में से बहुत सारे लोग हैं आपके अतीत को लेकर आज भी आप झुलझ रहे हो। You accepted Christ, आपने मसीह को अपनाया है, but you are not able to forget your past. लेकिन फिर भी आज भी आपके अतीत को आप भुला नहीं पाए। And you are not able to forgive few people that came across your life in the past. और आपके जिंदगी में जो अतीत से जुड़े हुए जो लोग हैं, कुछ लोगों को आप माफ नहीं कर पा रहे। And the Bible says clearly, बाइबल साफ तरीके से कहता है Jesus has set you free. यीशु ने आपको छुड़ाया है, स्वतंत्र किया है। And start believing from today onwards that Jesus has set me free. आज से इस बात पर विश्वास करें कि यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है, मैं स्वतंत्र हो गया When you हूँ। start believing that Jesus has set you free, जब आप इस बात पर विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया you है, will experience the deliverance in your life. फिर आप उस छुटकारे को आपकी जिंदगी में महसूस कर पाओगे। Today what happens?
आज क्या होता We है, know Jesus died for me, हम जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे खातिर मारा गया, but still we don't believe that Jesus is setting me free. लेकिन हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है। Okay, there was a man called Hero. हीरो नाम का एक व्यक्ति था, He was a general during the World War II. और जब दूसरा जो महायुद्ध हुआ उस समय में वो एक बहुत बड़ा अधिकारी था, And he was the commanding officer for the Japanese army. और जापानीज जो आर्मी थी, सेना थी, उसका वो सेनापति रहा। Now he was put as in charge of to defend the Philippines. और फिलीपींस की रक्षा करने के लिए उसे तैनात किया गया था। When Americans invaded Philippines in 1945, और 1945 की बात है जब अमेरिका ने फिलीपींस पर कब्जा ले लिया, and he and his soldiers ran to the hills. तब वो और उसके साथ जितने भी सैनिक थे वे सब एक ऊंचे पहाड़ की ओर भाग पड़े। The same year, August 15, और उसी वर्ष में 15 अगस्त के दिन the war ended, जो दूसरा महायुद्ध था वो समाप्त हुआ, but this group was still in the hill. लेकिन ये जो सेनापति और उसके साथ जो सैनिक दल थे वो उसी पहाड़ पर थे। After the war was ended, और जब युद्ध समाप्त होता है, the leaflet was thrown out of the aeroplane to make them to know that the war is ended. हवाई जहाज से कुछ पर्चे फेंके गए जहां उस पर लिखा था कि युद्ध समाप्त हुआ है, They took the leaflet, और उनके पास भी वो पर्चा पहुंचा। they read it, उन्होंने उस पर्चे में जो लिखा था but पढ़ा, still they thought it is a fake news. लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि ये जो भी बात इसमें लिखी है ये सब झूठी It है। did not happen one time, और एक बार नहीं हुआ ऐसा, few times, and they got the information the war has been ended. ऐसा एक बार नहीं, दो तीन काफी बार उन्हें ये बात पता चली कि युद्ध समाप्त हुआ But है, still these people were believing that no, the still war is going on, it is a fake news. लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने यही विश्वास किया, नहीं ये तो झूठी बात है, झूठी खबर है, और उसे यही विश्वास किया कि अब भी अमेरिका और फिलीपींस में युद्ध चल रहा है। 1974, और 1974 की बात है, almost after 30 years, लगभग 30 वर्ष बीत गए, one old commanding officer visited this hill personally and told this man Hero and said war has been ended 30 years before. फिर एक दूसरा सेनापति उसके पास जाता है और कहता है वाकई में जो युद्ध चल रहा था अमेरिका और जापान के बीच वो समाप्त हो गया है। Then he started to believe that war has been ended. जब इस अधिकारी ने उससे कहा तब जाकर उसने विश्वास किया कि वाकई में युद्ध समाप्त हो गया। War had ended 30 years before, अगर देखा जाए असलियत में तो वो युद्ध 30 वर्ष पहले ही but these समाप्त हो गया people था, did not believe that war has been ended. लेकिन ना ही हीरो ने ना ही उसके सारे सैनिक दल ने विश्वास किया कि युद्ध समाप्त The हुआ same है। thing has happened with so many Christians today. यही बात मसीह लोगों के साथ भी होती है। Jesus came to die and he set us free, यीशु मसीह आए, हमारे खातिर मारे गए ताकि हम आजाद हो जाए, but still many of us are living in bondage. लेकिन हम में से बहुत लोग आज भी बंधुआई की जिंदगी जी रहे हैं। Many of us are living in past life. आज हम में से बहुत लोग अतीत में जीवन बिता रहे हैं। When you fail, you go to an inferiority complex and you think, no, I cannot live a victorious life anymore. बहुत बार हम हमारी जिंदगी में जब असफल हो जाते हैं हम शर्मिंदगी से गुजरते हैं और हमें ऐसा लगता है कभी भी मैं मेरी जिंदगी में विजयशाली जिंदगी नहीं जीवन बिता पाऊंगा। And believe that Jesus died on the cross to set us free. हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे खातिर क्रूस पर मारे गए ताकि हम स्वतंत्र हो जाए। If you want to have deliverance in your life, अगर आप आपकी जिंदगी में छुटकारे को चाहते हो first thing you must know that Jesus has set me free. तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है। You must believe that Jesus alone can set me free. आपने इस बात पर विश्वास करना है कि केवल और केवल यीशु मसीह ही मुझे छुड़ा If सकता you are है। still living in past life, अगर आज भी आप अतीत की जिंदगी जी रहे हो, though you are a Christian, भले ही आज आप मसीह हो, though you are a baptized member, भले ही आज आपने डूब का बपतिस्मा लिया though you हो, go to church every week, भले ही आप हर हफ्ते कलीसिया जाते हो, but unless and until you start believing that Jesus has set you free, still you will live in bondage. लेकिन जब तक आप इस बात पर विश्वास न करो कि यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया है तब तक आप बंधुआई की जिंदगी ही जियोगे। The number one, Jesus alone can set us free. सबसे पहली बात केवल यीशु मसीह ही हमें छुड़ा सकता है। Number two,
दूसरी बात, truth alone will set you free. केवल सत्य हमें छुड़ा सकता है। Okay, turn with me to John chapter 8 and verse 32. यूना 8:32 की 32 की ओर हम खोले। John chapter 8 and verse 32. यूना 8:32। And you shall know the truth, and the truth shall set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। The same passage Jesus speaks to Jewish people again. और ये अध्याय जो है इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहा है। Jesus said, यीशु ने उनसे कहा, you shall know the truth, and the truth shall set you free. आप सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। What is truth? सत्य क्या है? When you turn to John chapter 14 and verse 6, जब हम यूना 14:6 को पढ़ते and हैं, it says, Jesus said, I am the way, I am the truth. यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। So what is truth? सत्य क्या है? Jesus is truth. यीशु ही सत्य है। When you turn to John chapter 17 and verse 17, जब हम यूना 17:17 देखते हैं, sanctify them through thy truth, thy word is truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। What is truth? सत्य क्या है? The word of God is truth. परमेश्वर का वचन सत्य है। When you read Psalm 119 and verse 160, जब हम भजन संहिता 119 वचन 60 पढ़ते हैं, 160, 160 Yes. 160 पढ़ते and हैं, there it says the word of God is truth. यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन सत्य है। So the Bible says, बाइबल कहता है the truth will set you free. सत्य हमें बंधन मुक्त करेगा। The knowing the truth will set you free. सत्य को जानना हमें स्वतंत्र करेगा। Knowing Jesus will set you free. यीशु को जानने से हम स्वतंत्र होते हैं Knowing the truth of God will set you free. और परमेश्वर के सत्य को जानने से हम स्वतंत्र होते हैं। John did not say here, यहाँ पर यूना कहता है, Bible verse will set you free. यहाँ पर यूना ऐसा नहीं कहता है कि बाइबल का वचन आपको स्वतंत्र करेगा। Now, of course, we believe it. यस, हम विश्वास करते हैं हर एक बाइबल के वचनों पर। It is not the truth that is in the Bible will set you free, but it is knowing the truth that will set you free. बाइबल में जो सत्य दर्ज है वो हमें स्वतंत्र नहीं करेगा, लेकिन ये जो सत्य दर्ज है उस पर विश्वास करने से हम स्वतंत्र होते We know हैं। that Jesus is truth. हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही सत्य है, We know the सच्चा word है। of God is truth. हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। If still it is there, अगर परमेश्वर का वचन है, it will not set you free. लेकिन वचन केवल रहने से आप स्वतंत्र नहीं होते हो। Bible says, बाइबल कहता है when you know Jesus, जब आप यीशु को जानते हो, when you know the truth, जब आप सत्य को जानोगे, then the truth will set you free. फिर वो ही सत्य आपको छुड़ाएगा। Jesus said it very clearly. यीशु मसीह ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया। Now, some of us think if I prayed, everything will be all right. हम में से बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास करते, यदि मैं प्रार्थना करूंगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। Now, some of us think if somebody comes and lays their hands over me, I may be healed, I may be delivered. हम में से बहुत लोग इस बात पर भी विश्वास करते, यदि परमेश्वर का कोई दास आए मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना करे, फिर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। I will say, लेकिन मैं कहना चाहता that हूँ, might be a partial deliverance. आपको ऐसा करने से छुटकारा मिलेगा, लेकिन वो छुटकारा कैसा होगा? अधूरा छुटकारा होगा। That might be a temporary deliverance. वो जो छुटकारा है कुछ समय तक ही सीमित रहेगा, That will not be a permanent deliverance. वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा आपके साथ। I personally know a sister. मैं एक बहन को जानता हूँ That mother was talking to me. और ये बहन मुझसे पास से बात कर रही And she थी told me my daughter is deaf. और वो बहन बता रही थी कि मेरी बेटी कान से सुन नहीं सकती, बहरी है। Deaf and dumb. मेरी बहन के मेरी बेटी केवल बहरी ही नहीं लेकिन गूंगी भी है। I took her to the great man of God. और मैं उन्हें परमेश्वर के बहुत बड़े दास के पास ले गई। If I tell his name, everybody will know that. अगर परमेश्वर के उस दास का नाम भी अगर पास्टर बताए, आप कहोगे मैं इस परमेश्वर के दास He's को a जानता world famous healing preacher. और पूरी दुनिया उन्हें जानती है और दुनिया गवाही देती कि उनकी सभा में जाकर हर एक बीमार व्यक्ति चंगा होता ही है। This mother took this daughter to that pastor. और ये जो माता है अपनी गूंगी और बहरी बेटी को लेकर उस सभा में गई। That man prayed for this girl. और परमेश्वर के उस बड़े दास ने इस बेटी के लिए प्रार्थना की Indeed, she got healed. और तुरंत उसी क्षण उस बेटी को चंगाई मिली She got healed. और ये गूंगी और बहरी जो बेटी थी वो चंगी हो गई। But today when you look at her life, लेकिन आज यदि आप उस बेटी की जिंदगी को still देखोगे, she won't be able to talk. आज भी वो बेटी बोल नहीं सकती, मेरी उम्र की है। And the mother told me, और उस माता ने पास्टर से कहा, no, receiving healing is
very easy, but protecting the healing is very difficult. और ये माता जो है वो भी एक परमेश्वर की दासी है, और उस दासी ने पास्टर से कहा कि चंगाई प्राप्त करना जितना आसान है ना, उससे भी कठिन क्या है, तो हमारी चंगाई को टिका के रखना, That is संभाले what रखना। many people think, if somebody lays their hands over me, I shall be healed. हम में से बहुत लोग यही विश्वास करते, यदि कोई मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर ले तो मैं तुरंत चंगा हो जाऊंगा। I do still believe in healing. मैं भी इस चंगाई में विश्वास करता I हूँ, still believe in deliverance. मैं ऐसे तरीके के छुटकारे में विश्वास करता But I हूँ। would say that might be a partial deliverance, that might be a temporary deliverance. If you want to be permanently delivered, know the truth, and the truth will set you free. लेकिन मैं कहूंगा इस तरीके का छुटकारा प्राप्त करना, चंगाई प्राप्त करना कैसा है? अधूरा छुटकारा, अधूरी चंगाई है। पूरी चंगाई कब मिलती है? जब हम इस पर विश्वास करते हैं। How to know the truth? सत्य कैसे हम जाने? Verse 31 it says, वचन 33-31 कहता है, abide in my word. वचन 31 कहता है कि मेरे वचन में बने रहो। Ephesians chapter 6 and verse 14 says, इफिसियों 6:14 कहता है, stand firm and your loins girt about with truth. और इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर। He says, stand firm with the word of God. वो कहता है वचन में स्थिर रहो। It is not just reading the scripture. केवल वचन पढ़ना काफी नहीं है, It is not just listening the word of God, केवल परमेश्वर का वचन सुनना काफी नहीं है, but knowing the word of God, लेकिन परमेश्वर के वचन को जानना, applying the word of God in your life, परमेश्वर के वचन को हमारे जिंदगी में उसे लागू करना, then the truth will set us free. फिर वो सत्य हमें छुड़ाता है। So many truths are there in the churches today. आज बहुत कलीसिया में बहुत सारे सत्य जो है प्रचलित है, No, they will use the same word, to deceive us. और बहुत बार है ना हम देखते हैं बहुत सारे जो झूठे कलीसिया के लोग हैं वो भी बाइबल के ही आधार पर हमसे बात He करते came हैं, to you with the same word. और वो लोग भी नहीं कि इसी बाइबल को लेकर आपके पास आते हैं। Devil came to you with the same word. हम देखते हैं शैतान भी परमेश्वर का वचन लेकर हवा के पास गया। Tempter came to Jesus with the same word. जो प्रलोभन करने वाला था उसने भी, शैतान ने क्या किया? बाइबल के ही वचन का It is just इस्तेमाल the किया word. यीशु से बात करने के लिए। It is just the word of God, but it is not the truth. भले ही वो परमेश्वर का वचन रहे, भले परमेश्वर का वचन रहे, लेकिन जान लो उसमें सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है। Now many people, we are so much satisfied just reading the scripture. हम में से बहुत सारे लोग हैं ना केवल बाइबल पढ़कर ही संतुष्ट है। Now sometimes we are so happy just attending the church, हम में से बहुत लोग केवल कलीसिया आकर ही खुश हो जाते हैं, just listening to the word of God. केवल परमेश्वर का वचन सुनकर ही खुशियां मनाते But हैं। the question is, लेकिन सवाल यह है, do you know the truth? क्या आप सत्य को जानते हो? Do you believe the true word of God? क्या आप परमेश्वर के सच्चे वचन पर विश्वास करते हो? As you have started the journey towards deliverance, जैसे आपने आपके छुटकारे की यात्रा की शुरुआत की if है, you want to experience full and permanent deliverance, और यदि आप चाहते हो कि आपका छुटकारा हमेशा बना रहे, टिका रहे, know the truth of God. तो इसके लिए आपने परमेश्वर के सत्य को जानना जरूरी है। Go to a church where the truth is preached. ऐसे कलीसिया जाए जहां पर सत्य का प्रचार होता है। Don't go to a church so that you will be satisfied yourself and say, okay, I have attended the church. कभी ऐसी कलीसिया मत जाना केवल जाकर आप आपके ही दिल को नहीं झूठी तसल्ली दे रहे हो कि हाँ मैं कलीसिया गया। No, some people go to church just for the membership. कुछ लोग कलीसिया केवल है ना उस कलीसिया के सभासद रहे इसलिए जाते हैं, Some people go to church just to get married. और कुछ लोग कलीसिया जाने का मकसद क्या है? यदि मैं कलीसिया जाऊंगा फिर मेरी शादी होगी। Some people go to church just they will get some graveyard. और कुछ लोग कलीसिया इसलिए जाते हैं, अगर कलीसिया नहीं गया तो मरने के बाद मेरे कब्रिस्तान में जगह मिलेगी या नहीं। Some people go to church with looking lot of things. और कुछ लोग बड़ी अपेक्षा लेकर कलीसिया जाते हैं। But I'll tell you one thing. लेकिन एक बात Go बताना to चाहता हूँ, any church where the truth is preached, because the truth alone will set you free. किसी भी कलीसिया जाए, लेकिन ऐसी कलीसिया जाए जहां पर सत्य बोला जाता है, क्योंकि सत्य ही आपको छुड़ाता If है। the truth is not preached in the church, यदि कलीसिया में सत्य का प्रचार You नहीं might go होता to है church. तो शायद आप कलीसिया जाओगे, you might feel okay. शायद आपको लगेगा अच्छा लगेगा, You might be satisfied. शायद आपको बहुत संतुष्टिया भी You प्राप्त might होगी, think, okay, I attended one more week, so I will be blessed this week. शायद आपको ऐसा लगेगा इस हफ्ते में कलीसिया गए तो पूरे हफ्ते की आशीष मुझे मिल जाएगी, But still you will be in bondage. लेकिन फिर भी आप बंधुआई में ही रहोगे। Knowing the scripture will not give you the permanent deliverance, but knowing the truth will help you to have the permanent deliverance. केवल वचन को जान के आप
आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन उस वचन में जो लिखा गया जो सत्य है, जब आप उसे जानोगे तब आपको असली जो छुटकारा है वो प्राप्त होगा। Go to a place where the truth is preached. ऐसी जगह जाइए जहां पर सत्य का प्रचार होता है। Read the word of God. परमेश्वर का वचन पढ़े, Abide in the word of God. परमेश्वर के वचन में बने रहे, Meditate the word of God. परमेश्वर के वचन पर मनन करें, Search in the scriptures परमेश्वर के वचन को ढूंढे, to know the truth, फिर आप सत्य को जानोगे, to know Jesus. फिर आप यीशु को जानोगे। If you are in bondage for so many years, अगर आप अनेक वर्षों से बंधुआई में हो still you are struggling, और आज भी अगर आप संघर्ष कर still रहे putting हो, all your effort but not moving forward, बहुत मेहनत करते हो लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, still you are living a defeated life. आज भी एक हारी हुई जिंदगी जी रहे हो, Though you know that Jesus can do everything for you, but still if you are in bondage, भले ही आप जानते हो कि यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी यदि आज आप बंधुआई में हो, but I will ask you a question this morning: do you know the truth? आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप सत्य को जानते हो? The second thing you must know the truth, and the truth alone will set you free. दूसरी बात आपने जानना है, सत्य को जानो और सत्य आपको छुड़ाएगा। Number one, I said, पहली बात मैंने आपसे कही, Jesus alone can set you free. केवल यीशु ही आपको छुड़ा सकता है। Number two, truth alone can set you free. दूसरी बात मैंने आपसे कही, केवल सत्य ही आपको छुड़ा सकता Number है। three, तीसरी बात, Holy Spirit alone can set you free. केवल पवित्र आत्मा ही आपको छुड़ा सकता है। 2 Corinthians chapter 3 and verse 17. दूसरे कोरिन्थियों 3:17, Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. प्रभु तो आत्मा है और जहां कहा प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। Paul Amen. says, पौलुस कहता है, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। When Paul was writing this letter to Corinthian church, पौलुस ये पत्री कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा the था, same chapter verse 2, he says, you are our written epistles. और दूसरे अध्याय में कहता है कि तुम ही जीवित पत्री हो। Verse 3, he says, that's not just with the ink but through the Spirit. और केवल तुम एक ऐसी पत्री नहीं हो जो शाई से लिखी गई हो, लेकिन आत्मा के द्वारा लिखी गई पत्री हो। And he goes on to say the difference between Old Testament glory and New Testament glory. फिर वो पुराने नियम का जो भी महिमा है परमेश्वर का और नए नियम की परमेश्वर की जो महिमा है, इसके अंतर को बताता है। And he comes to this particular verse, और जब इस वचन की ओर आता है, and he says, where there is Spirit, there is liberty. तब वो कहता है कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। Spiritual deliverance different from the physical deliverance. आत्मिक छुटकारा शारीरिक छुटकारे से अलग है। Look at our lives. आज हमारी जिंदगी की ओर देखिए। Now some of us are not sick, we are healthy. हम में से लोग जो है ना बीमार नहीं है, हम तंदुरुस्त है। Some of us are not in poverty, God has blessed us so much. हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ जो गरीबी में नहीं है, प्रभु ने हमें बहुत कुछ भर भर के दिया है। Now some of the areas we live in freedom. और हम ऐसे जगहों में रहते हैं जहाँ हम पूरे आजादी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। We have freedom to worship. आज हमें आजादी है, हम खुले मन से प्रभु की We आराधना have कर freedom सकते in हैं। our family to take the decision. आज हमारे परिवार में हमें पूरी वो आजादी है, जो निर्णय हम चाहते हैं हम खुद ले सकते हैं हमारे Externally लिए। we are enjoying freedom. हम पूरी तरह से आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। But look at your internal life. लेकिन आज हमारी अंदरूनी जिंदगी की ओर हम जरा झांक कर देखें। Some of you are still in loneliness though you live with so many people. भले ही हम हमारे एक परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। Though we are not peaceful, though we live in a peaceful family. आज भले ही आज हमारे परिवार में शांति है, लेकिन फिर भी मन ही मन हमारे अंदर वो शांति ही नहीं है। Now one or other things किसी ना किसी जरिए that disturbs us. कोई ना कोई बात हो जाती जिसके कारण हमारा मन है ना विचलित हो जाता है। Unexplained fear. अनपेक्षित ऐसी एक है ना डर समा जाता है। Unexplained worry. हम क्यों करके नहीं क्या चिंतित है, इस बात की वजह ही हम नहीं One जान or other सकते। things are disturbing our mind. कुछ ना कुछ हमारे मन को हमेशा नहीं क्या विचलित करती One or है। other people are disturbing our lives. कोई ना कोई आकर हमारे जिंदगी को नहीं क्या मानो पूरी तरह से तहस नहस करके चला जाता Though we है। have freedom externally,
भले ही भार से हम पूरी तरह से आजाद है, but we don't have freedom internally. लेकिन मन ही मन हम कहीं तो आजाद नहीं है। That is what Paul says. यही बात तो पौलुस कहता है, Only the Spirit can set us free. केवल परमेश्वर का आत्मा ही हमें पूरी तरह से आजाद कर सकता है। Many of us are very happy externally. हम में से बहुत सारे लोग ना बाहर दिखाने के लिए बहुत खुश When we रहते हैं। talk to people, people would think, okay, what is his problem? That he has no problem, such a blessed person he is. अगर कोई हमें बाहर से देखे बोलेगे वो तो कितना खुश नसीब इंसान है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, लेकिन हम ही जानते हैं कि हमारे जिंदगी में कितनी सारी मुश्किलें, कितने सारे दुख से हम पीड़ित हैं। People look at from outside and say, look, okay, he has good house, he has good car, he has good job, he has no problem. बाहर से नहीं क्या लोगों को दिखाई देता है, वो तो एक अच्छे घर में रहता है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी लंबी गाड़ी है उसके पास, But- उसे कौन सी बात की कमी है। But only we know the bondages we have. लेकिन हम ही जानते हैं हम किस बंधन में जीते हैं। The path of loneliness we go through. हम जिस अकेलेपन से गुजरते हैं हम ही जानते The हैं। stress we go through. जिस तनाव से गुजरते हैं वो तनाव केवल हम ही जानते हैं। Sometimes we don't have peace in our mind. कई बार तो मन में ना शांति नहीं रहती, Unexplained fear sometimes that comes into our mind. बहुत बार है ना अचानक से एक भय समा जाता है मन में। Though we have the promise of God, भले ही परमेश्वर का वायदा हमारे साथ though we है, believe Christ, भले ही हम मसीह पर विश्वास but करते one हैं, or other thing still disturbing us. लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा हमारे मन को नहीं क्या यातना देती रहती है, Still that makes us to be in bondage. और इसके कारण हम बंधुआई में जीते हैं। Though Jesus has given us freedom, भले ही यीशु ने हमें छुटकारा दिया but है, still we are living in bondage. लेकिन फिर भी हम बंधन में जीते हैं। Now while you are being in the church, जब हम कलीसिया में हैं, we may experience powerful worship, हम शायद बहुत सामर्थ्यशाली आराधना को महसूस कर पाए, powerful message, हम बहुत सामर्थ्य परमेश्वर का वचन सुने, powerful fellowship. हमारी सहभागिता बहुत तगड़ी हो, But when you go to home again, लेकिन जब हम हमारे घर जाते हैं, looking at same people, हमारे ही घर वालों की शक्ल देखते हैं, looking at same situation, वही हालातों को देखते हैं, same loneliness repeats, और फिर वही अकेलापन दोबारा हमें नहीं क्या परेशान करता है, same stress, वही तनाव आता है, same depression. वही निराशा आ जाती है। Now we pray, हम प्रार्थना we करते ask हैं, people to help us, हम कहते हैं दूसरों से कि मेरी मदद करे, but you may get some time like temporary solution. और कई बार है ना हम क्या करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, लेकिन ये भी निर्णय कैसे होते हैं, थोड़े समय के लिए होते Still हैं, you are in bondage. और ये सब करने के बावजूद भी हम बंधुआई में No रहते हैं। third thing in your life. तीसरी बात जान लो, When the Spirit of the Lord sets you free, you shall be free. जब परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाएगा तब आप वाकई में स्वतंत्र हो You are जाओगे। a person living in loneliness. अगर आप एक ऐसी व्यक्ति हो जो अकेलेपन की जिंदगी गुजार You are रहे a हैं, person who cannot explain your problem to others. अगर आप एक ऐसी व्यक्ति हो जो आपके जीवन की समस्या किसी को नहीं बता सकते, Sometimes you think, I don't want to think like that. कई बार आप सोचते हो ना ये जो मैं सोच रहा हूँ गलत है, मैंने ऐसा नहीं सोचना है। Sometimes you think, I don't want to do that. कई बार आप सोचते हो कि मुझे ये नहीं करना है। Sometimes you think, I don't want to feel like that. कई बार आप ऐसा सोचते हो मैंने ऐसा नहीं सोचना, ऐसा अपने आप के विषय में नहीं महसूस But करना है, still, without your knowledge, you are getting into the same situations. लेकिन फिर भी जीवन की हालातों पर आपका बिल्कुल नियंत्रण नहीं, आप It's- वही करते हो जो आप नहीं करना It's चाहते। not 1 day, 2 day problem. ऐसा नहीं कि ये समस्या 1 या 2 दिन की है, For months, you are struggling with that. कितने सारे महीनों से आप उन्हीं समस्याओं से झुलझ रहे हो, For years, you are struggling with that. कितने सारे वर्षों से आप उन्हीं समस्याओं से झुलझ रहे हो। John chapter 14 and verse 16 it says, यूना 14:6 कहता है, Holy Spirit is given to us to be with us forever. पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि वो पवित्र आत्मा नित्य हमारे साथ रहे। If the Spirit of the Lord is with you, यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे if साथ the है, Holy Spirit is with you, you यदि पवित्र आत्मा हमारे संग will है, walk in freedom. फिर आप स्वतंत्रता में चलोगे। After becoming a Christian, मसीह होने के बाद, after coming to church, कलीसिया आने के बाद, but still if you are in bondage, यदि आज भी आप बंधुआई में हो, I want you to know these 3 truths in your life. तो मैं चाहता हूँ कि ये 3 सत्य जो है इसे आप जान लो। Number 1, Jesus alone can set you free. पहली बात तो केवल यीशु मसीह ही आपको छुड़ा सकता है। Disciplines may help you in certain ways. आपकी जिंदगी में जो अनुशासन है कुछ हद तक आपको नहीं क्या संभाल सकता Some है। distractions
distractions may help you in certain level. अपने ध्यान को भटकाने के लिए आप कुछ करते होगे, वो चीजें आपको कुछ चीजों Some में people- मदद करती होगी। Some people may help you in certain levels. कुछ लोग आपको कुछ स्तर तक ही मदद कर सकते हैं, No one can help you to get rid of these things 100% without Jesus. लेकिन एक बात जान लो, बिना यीशु के कोई भी आपको इन सारी चीजों से 100% बाहर निकलने में मदद नहीं कर सकते। Jesus has set you free. यीशु ने आपको छुड़ाया है। You start believe that Jesus has set me free. फिर आप विश्वास करें, हाँ वाकई में मैं छुड़ाया गया हूँ। Number 2, knowing the truth will set you free. दूसरी बात, सत्य को जानने से हम स्वतंत्र हो जाते Number हैं। 3, the Holy Spirit will set you free. तीसरी बात कि पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र करता You है। are still in bondage. आज भी यदि आप बंधन में हो, Even if you are still in bondage, यदि आज भी आप बंधन में हो, start believing these 3 things. तो इन 3 चीजों पर विश्वास करें। Just tell to Christ, not I. प्रभु से कहे, मैं नहीं प्रभु, I cannot come out of this bondage. Lord. मैं इस बंधन से बाहर नहीं निकल I सकता। have tried a lot. मैंने बहुत प्रयास I किया made a है, lot of decisions. मैंने बहुत सारे निर्णय लिए Many people हैं, prayed for me. बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना Many की people है, helped me. बहुत सारे लोगों ने मेरी I मदद की tried a lot है, of sources. मैंने बहुत प्रयास किया I have है, not come out of this bondage 100%. लेकिन इस बंधन से 100% बाहर नहीं निकला हूँ। But today I know one thing. लेकिन आज मैं जानता हूँ Jesus, you alone can set me कि free. यीशु केवल तू ही मुझे छुड़ा सकता Only है। knowing the truth will set me free. केवल सत्य को जानने से ही मैं स्वतंत्र हो Only the Holy सकता हूँ। Spirit will set me free. केवल पवित्र आत्मा ही मुझे I'm आजाद कर keeping सकता aside है। all my efforts. मैं मेरे सारे मेहनत को बाजू में रखता I'm हूँ। keeping aside all the people who are helping me. जो लोग मेरी मदद करते हैं, उनको भी मैं साइड में रखता हूँ। I'm just keeping aside all the things that I tried for. जितने सारी चीजों का मैंने करने की कोशिश की, उन सारी बातों को मैं बाजू में रख As देता I'm हूँ। starting my journey towards deliverance, जब मैं मेरे जीवन की यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ कि मुझे छुटकारा मिले, I will start believing these 3 things. मैं इन 3 बातों पर विश्वास करूंगा। I will not try anything. मैं अब कुछ प्रयास नहीं I करूंगा। want the Holy Spirit to help me. मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरी मदद I करे। believe Jesus has set me free. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने मुझे छुड़ाया I है। will take a decision and I will take steps to know the truth and know Jesus. मैं ये निर्णय लूंगा, मैं सत्य को जानूंगा और उसके अनुसार चलूंगा। I will walk in victory. मैं विजय में जीवन बिताऊंगा। Let's all Amen। rise in our feet. आइए इस वक्त हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। Let's all stand together. आइए इस वक्त हम सब खड़े होकर प्रार्थना करें। Though you accepted Christ, भले ही आपने मसीह को अपनाया है, though you are attending the church for so many years, भले ही आप अनेक वर्षों से कलीसिया आ रहे हो, though you read Bible, भले ही आप बाइबल पढ़ते हो, though you partake in ministry, भले ही आप सेवकाई में हाथ though you do लगाते a हो, lot of things for God, भले ही आप प्रभु के लिए बहुत कुछ but करते हो, still you yourself know what kind of bondages are you in. लेकिन फिर भी आप ही जानते हो कि आप कौन से किस्म के बंधन में आज हो। You know that Jesus can deliver you, आप जानते हो कि यीशु आपको छुड़ा सकता but है, still you are in bondage. लेकिन फिर भी आज आप बंधन में हो। You know Jesus can heal you, आप जानते हो कि यीशु आपको चंगा कर सकता but still है, you are not experiencing that. लेकिन फिर भी उस चंगाई को आप महसूस नहीं कर पा Still रहे। you live in fear. आज भी आप भय में जीवन व्यतीत Still करते you हो, live in loneliness. आज भी आप अकेलेपन की जिंदगी बिताते Still you हो, are fighting the battles. आज भी आप उस युद्ध में हो, Still you are not able to overcome your thoughts. आज भी आप आपके विचारों पर काबू नहीं पा सकते। Still you are striving hard but no improvement. आज भी आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। Know that there is a bondage. जान लो आपके जिंदगी में बंधन है। Know there is a bondage. जान लो कि जिंदगी में बंधन It is है। not the will of God that you should be in bondage. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप बंधन में जीवन व्यतीत करो। It is not the plan of God that you should live in bondage. ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है, उसका मकसद नहीं कि आप बंधन में रहो। Jesus came to this world to die not only for our sins but also to deliver us. यीशु मसीह इस भूतल पर इसलिए नहीं आए केवल हमारे पाप के लिए, लेकिन हमें छुड़ाने के लिए भी आए हैं। Make a decision. आज एक निर्णय ले, Jesus alone can set me free. प्रभु यीशु ही मुझे छुड़ा सकता है। Jesus came to this world and he has made me free. यीशु मसीह इस भूतल पर आए और उन्होंने मुझे आजाद किया है। If you are struggling, यदि आज आप संघर्ष कर रहे tell हो, to Jesus, प्रभु से कहे, today onwards, आज के बाद I will start to believe. मैं विश्वास करूंगा Lord, you made me free. कि तूने मुझे छुड़ाया है, You made me free. तूने मुझे छुड़ाया है। 30 years of the war ended, but still the man could not believe. उस हीरो के समान जिसने 30 वर्ष पहले ही युद्ध समाप्ति होने के बाद भी
he could not believe the war has ended. वो विश्वास नहीं कर पाया कि युद्ध समाप्त हुआ है। Some of you, after attending church for so many years, but still you don't believe that Jesus has set you free. वैसे ही आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, कलीसिया आ रहे हो लेकिन फिर भी छुटकारे को नहीं अपनाया है। Truth alone can set you free. केवल सत्य ही आपको आजाद कर सकता Do है। you know the truth? क्या आप सत्य को जानते हो? You know the word of God. आप परमेश्वर का वचन जानते You हो? listen the word of God. आप परमेश्वर के वचन को सुनते You हो? go to church every week. आप हर हफ्ते कलीसिया जाते You हो? pray every week, every day. हर दिन आप प्रार्थना करते हो? But do you know Christ? लेकिन आप मसीह को जानते हो? Have you experienced Christ personally? क्या आपने मसीह को व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया है? Do you know the word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन को जानते Do हो? you know the truth of God? क्या आप परमेश्वर के सत्य को जानते Do हो? you go to a place where the truth is preached? क्या आप ऐसी जगह जाते हो जहां पर परमेश्वर का सत्य वचन बोला जाता Do है? you go to a place where you are protected by their prayers? क्या आप ऐसी जगह जाते हो जहां पर आपको प्रार्थना का कवच प्राप्त होता Do you है? go to a church where you are properly guided? क्या आप ऐसी कलीसिया जाते हो जहां पर आपको सही तरीके से राह बताई Do जाती you go है? to church where you are properly fed? क्या आप ऐसी कलीसिया जाते हो जहां पर आपको भरपेट ऐसा आत्मिक भोजन दिया Does जाता the है? church help you to abide in the word of God, abide in Christ? क्या कलीसिया आपकी मदद करती है ताकि आप मसीह के वचन में बने रहे? Then only you shall know the truth. फिर ही आप सत्य को जान पाओगे। Then only you shall know the truth. फिर ही आप उस सत्य को जान पाओगे। Only the truth will set you free. केवल परमेश्वर का सत्य ही आपको छुड़ा सकता Only है। the Holy Spirit will set you free. केवल पवित्र आत्मा ही आपको छुड़ा सकता है। Today, make a decision in your life. आज आपकी जिंदगी में एक निर्णय ले, Lord, I will know the truth. मैं सत्य को जानूंगा, I will know the truth. मैं सत्य को जानूंगा। I will take all the efforts to know the truth. सारा प्रभु मैं प्रयास करूंगा ताकि मैं तेरे सत्य को जान पाऊं। Then only I can live a victorious life. फिर ही प्रभु मैं एक विजयशाली जिंदगी जी सकता Then हूँ। only you can live a victorious life. फिर ही आप एक विजयशाली जिंदगी जी पाओगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू जीसस। Father, we want to thank you for this morning, Lord. हे पिता, आज की सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। Lord, we humble our lives before you, Lord. प्रभु, हम अपनी जिंदगी तेरे सामने नम्र बनाते We हैं। know Jesus came to deliver us. हम जानते हैं कि यीशु मसीह छुड़ाने के लिए But आया, many followers of Christ still are in bondage. लेकिन बहुत सारे तेरे अनुयायी आज भी बंधन में है। It is not your will. प्रभु, ये तेरी इच्छा नहीं It है। is not your desire. प्रभु, ना ही ये तेरी मंसूबे है। And we know that, Lord, प्रभु, हम जानते you हैं came to deliver us. तू प्रभु हमें छुड़ाने आया You है। came to set us free. प्रभु, तू हमें आजाद करने आया And the है। truth is setting us free. और प्रभु, तेरा वो सत्य हमें आजाद The करता Holy है। Spirit is setting us free. तेरा पवित्र आत्मा हमें आजाद करता है। Lord, today we surrender our lives, प्रभु, Lord. हम हमारी जिंदगी तेरे हाथ में देते We हैं। will obey your word. प्रभु, हम तेरी वचनों को मानेंगे। We will know that Jesus alone can set me free, Lord. हम जानते हैं केवल यीशु ही हमें छुड़ा सकता I है। will take all my efforts to know the truth. मैं पूरा प्रयास करूंगा प्रभु, ताकि मैं सत्य को जानूं। I will invite the Holy Spirit in my life. मैं पवित्र आत्मा को मेरी जिंदगी में आने की अनुमति देता हूँ, Because your word says, where there is spirit, there is liberty. क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आजादी है। Lord, I pray. प्रभु, मैं प्रार्थना करता All the हूँ, people who hear this word, जितने लोगों ने प्रभु आज ये वचन सुना है, whatever the bondages they are in, जो भी बंधन में आज वो है, in the name of Jesus, let them be delivered. यीशु के नाम में प्रभु उस बंधन से वो छुड़ाए जाए। All the bondages, हर एक बंधन से, maybe in the thought of loneliness, जो भी अकेलेपन का प्रभु आत्मा है, depression, जो भी प्रभु निराशा की आत्मा है, Failure. जो भी प्रभु असफलता है, inferiority complex, जो भी प्रभु अपने आप को ही कम समझने की आत्मा है, Sin. जो भी पाप है, defeated lives, जो भी प्रभु प्रयास ऐसी in the जिंदगी है, name of Jesus, let them be completely delivered. हर एक चीजों से वो पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए। As they are taking steps to walk towards victory, जैसे प्रभु वो कदम उठा रहे हैं प्रभु, ताकि वो विजय में चले। I pray the Holy Spirit help them, Lord. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा पवित्र आत्मा उन्हें चलाए। Continue to speak with these words. प्रभु, तेरे वचन के द्वारा उनसे बात I कर। want every one of our members to be completely delivered in Jesus' name. मैं चाहता हूँ प्रभु इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति पूरी तरह से छुड़ाया जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord, for hearing our prayers. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमेन।